Good afternoon, everyone. COE BHU welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is comprehensive guidelines on viral load testing in PLHIV under NACP, and the speaker is Professor Dr. Jaya Chakravarti. Dr. Jaya Chakravarti ma'am is a professor with the Department of General Medicine at Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi. She is also the program director of the Center of Excellence in HIV Care and the nodal officer for the ART Center at BHU Varanasi. She is a national trainer for HIV and has been involved in training and mentoring of ART centers. She has more than 95 publications with around 5,000 citations in international and national journals. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thanks a lot for the introduction. So today's session, most of you have already attended. There was a national session regarding the comprehensive guidance of viral load testing in PLHIV under NACP. तो ये बहुत कुछ नया तो है नहीं. So let us go through slides. विशाल जी slides change नहीं हो रहा है. Okay. So on May 5th, May 2nd, sorry, आप लोग सभी के पास एक ये आया था OM, and there was a change in the guidelines of viral load testing, and that is why we are having this session again, so that you all are not confused, okay, about what has to be done and what is the change in the guidelines. So what they changed is very nicely actually given in this algorithm. So we will discuss this algorithm mainly in the next few slides. Okay. So it is an interactive session. हमको ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको ज़्यादा आंसर करना है, ठीक है? So Kiran sir, can we have the first poll? Sorry? No, we are displaying the poll, ma'am. अच्छा, ठीक है. I'll read out the questions, ma'am. As per my understanding, main purpose of viral load testing is options दिए गए हैं to take decision for switch, to understand response to treatment, to assess performance of ART center, none of the above, all of the above. आपको आपके participants are requested to click on the answer on the screen. सारे participants से request है कि please e-poll attempt करें. 26 participants हैं. अभी तक खाली 13 का आया है. सारे participants से request है please e-poll attempt करें जिन्होंने अभी नहीं किया है. Ma'am, can we end the poll? Yeah. So सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि इट इज वायरल लोड इसलिए किया जाता है कि आपका ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स है उसको देखने के लिए, ठीक है. बट हमको जस्ट पूछना था कि आपका स्विच का डिसीजन के लिए वायरल लोड टेस्टिंग नहीं होता है क्या? उसके लिए भी होता है. एंड आपका जो 95 95 95 है, व्हाट इज द थर्ड 95? The third 95 is the number of people who are on ART जिसका viral load suppressed है. So actually if you just see, this is my belief that कि ये तीनों चीजों के लिए ये viral load testing होती है. Immediately तो आपका response to treatment देखने के लिए, उसे response देखने के बाद further आप जब उसका counseling वाउंसलिंग करके and then decision लेंगे switch करना है कि नहीं करना है, उसके लिए भी आपको viral load चाहिए. एंड अल्टीमेटली आप सभी ART सेंटर्स को आपके वायरल लोड का परफॉर्मेंस पे भी आपको रैंक किया जाता है. सो अल्टीमेटली इट इज ऑल थ्री ऑफ द अबव. बट फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारा वायरल लोड टेस्टिंग का है, उसका है टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट.
विशाल जी फिर से ये रुक गया, क्लिक कर दे। सो एनएससीपी के दायरे में वायरल लोड टेस्टिंग जो की जाती है, इन मैंने फर्स्ट इज ट्रीटमेंट टू सी द मॉनिटर द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स ऑफ पीएलएचआई। तो कब ये की जाती है? एनी पीएलएचआईवी हु आर ऑन एआरटी एट लीस्ट फॉर 6 months। तो ये आपका गाइडलाइंस है। एनी एनी पेशेंट जो कि नया आया है, HIV-1 या HIV-1 and 2 दोनों हो, को इन्फेक्टेड हो, उनका आप वायरल लोड करते हैं एट द 6 months। HIV-2 का वायरल लोड हमारे पास है नहीं, सो वी डू नॉट मॉनिटर HIV-2 पेशेंट्स विथ वायरल लोड एट दिस पॉइंट। तो ये वाला पे ये पोल का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग आंसर कीजिए कि व्हाट आपका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए वायरल लोड टेस्टिंग का, जल्दी से, नहीं तो ये सारा दिन लग जाएगा। ओके, सो वी हैव मैक्सिमम लोग लिखे हैं कि हम लोग को वायरल लोड का फ्रीक्वेंसी 6 महीना होना चाहिए, फर्स्ट 6 months ऑफ थेरेपी, फिर 12 महीना पे, एंड देन एवरी ईयर, दैट इज एनुअली, एंड दैट इज करेक्ट। लेकिन जिन लोगों ने लिखा है 6 months एंड एवरी 12 months, ये आप लोग को जानना है कि एवरी 6 months खाली होता है सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन वाले पेशेंट में, लेकिन फर्स्ट लाइन थेरेपी का जो वायरल लोड का फ्रीक्वेंसी है वो पहले 6 महीने पे होगा, फिर 12 महीने पे होगा, उसके बाद हर साल, सालों साल होगा। पर आप लोग का ये भी प्रोविजन है कि एज ए क्लिनिशियन आपको अगर कभी लगता है कि ये अब आप वायरल लोड करना है किसी पेशेंट में, तो आप बीच में भी कर सकते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट लाइन के पेशेंट में फर्स्ट वायरल लोड आप जब करेंगे दैट इज एट 6 months, देन रिपीट इट, 12 महीने पे फिर से रिपीट कीजिए, और फिर उसके बाद हर साल आपको इसको रिपीट करना है। ये क्वेश्चन तो मैंने आउट कर दिया, तो ये मत कीजिए, हो गया, हम कर दिए। ये क्वेश्चन का पोल 1 सेकेंड में कर दीजिए। व्हाट इज द शेड्यूल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायरल लोड टेस्टिंग ऑन सेकेंड एंड थर्ड लाइन एआरटी? तो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन वाले में आप कब करेंगे? 1 सेकेंड में फटाफट। एवरी एवरी 6 months, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, ठीक है, एवरी 6 months। एंड फर्स्ट लाइन के लिए 6 months, 12 months एंड देन एनुअली। वेरी गुड। सो लेट्स stop sharing. सो फोर्थ पोल है नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन यू कैन ऑलवेज आंसर दिस कि ये जो एडिशनल वायरल लोड टेस्टिंग होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो किस लिए होता है? ये आपका रिवीजन है। ओके, सो आई स्टॉप देयर। तो मैक्सिमम लोग करेक्ट है कि आप जो 32 to 36 वीक्स पे प्रेगनेंसी में करना जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि मदर का वायरल लोड सप्रेस्ड है कि नहीं, ठीक है। अगर मदर का वायरल लोड सप्रेस्ड है देन द इन्फेंट बिकम्स लो रिस्क, ठीक है, तो उसके लिए प्रोफाइलैक्सिस अलग है। एंड अगर मदर का वायरल लोड सप्रेस नहीं है, तब वो बच्चा जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, उसका प्रोफाइलैक्सिस कम है, उसका उसका प्रोफाइलैक्सिस अलग है। तो इसी के लिए हम लोग देखते हैं, नन ऑफ द अबव भी करेक्ट चॉइस नहीं है जिसने भी कहा। और अगर आपका 6 महीना पे हुआ भी है, देन ऑल्सो 32 to 36 वीक्स प्रेगनेंसी में ये करना मैंडेटरी है।
ठीक है, ताकि आप जान पाए एग्जैक्टली कि आपका जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसका रिस्क ऑफ गेटिंग HIV क्या है, एंड आप डिसाइड करेंगे डुअल थेरेपी देंगे प्रोफाइलैक्सिस में या सिंगल ड्रग थेरेपी देंगे प्रोफाइलैक्सिस में। ठीक है, सो तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसको जस्ट समराइज कर देते हैं, हम लोग ने जो जितना पढ़ा है अभी तक, जो कि आपका रिवीजन है। तो एक जन भी गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर सिटिंग देयर अपने ART सेंटर में, तो एक भी चीज गलत नहीं होना चाहिए। सो अगर पेशेंट फर्स्ट लाइन ART पे है तो उसका फर्स्ट वायरल लोड 6 मंथ्स पे होगा, देन द सेकेंड एट 12 मंथ्स पे होगा आफ्टर ART इनिशिएशन, एंड उसके बाद हर साल एक बार होगा। अगर पेशेंट सेकेंड लाइन पे है या थर्ड लाइन पे है, हर 6 महीने पे उसका वायरल लोड होगा। अगर प्रेग्नेंट वुमेन आती है आपके पास, इधर डज नॉट इरेस्पेक्टिव ऑफ वो पहले से ART पे थी कि अभी ART पे गई है, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आप 32 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उस 32 to 36 वीक्स पे एक वायरल लोड करेंगे, एंड उस वायरल लोड से डिसाइड करेंगे कि बच्चे का रिस्क ऑफ गेटिंग HIV क्या है, और उसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे एक दवा देना है कि 2 दवा देना है फॉर इन्फेंट प्रोफाइलैक्सिस। ना ये वायरल लोड का इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, मैंने इसका क्या मतलब है। अगर आप बहुत बार देखते हैं TND, किसी में देखते हैं कुछ कुछ वैल्यूज है बट वैल्यूज 1000 से कम है, और कुछ कुछ में आप देखते हैं कि वैल्यूज मोर देन 1000 है। ठीक है, सो TND इज एन आइडियल, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि आपके पास HIV नहीं है, बट वो टारगेट आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप अपना PCR टेस्ट से। ठीक है, इसका ये कभी नहीं होता है कि HIV आपके पास नहीं है, द वायरस इज स्टिल देयर इन योर बॉडी, बट इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट, बिकॉज वो U/U मतलब ही अगर अनडिटेक्टेबल है तो आप वायरस को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ना अपने पार्टनर को करेंगे ना अपने बच्चे को करेंगे। सो U=U मीन्स अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिसिबल। ठीक है, अगर ये TND हो तो यू शुड बी वेरी हैप्पी एज अ क्लिनिशियन। ना ये बीच वाला जो येलो वाला बार है वो है वायरल लोड लेस देन 1000। इसका क्या मतलब है कि ART वर्क कर रहा है, ठीक है, मे बी थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ऑफ सम ब्लिप्स, ठीक है, कोई इंटरकरेंट प्रॉब्लम हुआ होगा उसके लिए, एंड यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट रूटीनली जैसे आप करते हैं। अगर ये फर्स्ट 6 मंथ्स का ऐसा आया है तो फिर 12वें महीने पे आप करवाएंगे, ठीक है, और या 1 साल के बाद वायरल लोड लेस देन 1000 कॉपीज आए तो फिर और 1 साल से बाद करवाएंगे, एंड जो रेजिमेंट चल रहा है, जो दवा चल रही वही चलते रहे। और एक बड़ा सा जो बार देख रहे हैं रेड वाला, दैट इज कि वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज। आज के दिन हम लोग मेनली इसी पे फोकस करेंगे। इसका ये मतलब है कि वायरस सप्रेस नहीं है, ठीक है ना। क्यों सप्रेस नहीं है, कि 2 कारण हो सकता है, इधर आप दवा नहीं खा रहे हैं, ठीक है, और सेकंड हो सकता है कि दवा काम नहीं कर रहा है, थर्ड भी हो सकता है कि दवा ठीक भी काम कर रहा था लेकिन आप कुछ और दवा ले रहे हैं जिससे आपका इस दवा का इंटरेक्शन हो, उसलिए दवा को ठीक से काम नहीं करने दे रहा है। तो ये 3-4 इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हम लोग को जो रूल आउट करना होता है ART सेंटर में बैठ करके एज मेडिकल ऑफिसर्स, कि पेशेंट दवा ले रहा है कि नहीं, ठीक है। दैट इज वाई इतने सारे एनहांस्ड अडेरेंस काउंसलिंग एंड ऑल दिस है, ठीक है। तो इसका ये पोल का आंसर दीजिए कि अगर HIV पेशेंट ऑन ART है फॉर मोर देन 6 मंथ्स पर अडियरेंस कम है तो आप कब वायरल लोड टेस्टिंग करेंगे। फटाफट पोल आंसर दीजिए। ओके, ये पोल इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि 2 लोगों में 2 राय है। एक बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि एज पर शेड्यूल
irrespective of adherence. The other not have, but quite a lot of people, almost मैंने 33% लोग बोल रहे हैं कि वेट टिल अडियरेंस इम्प्रूव्स टू, मैंने हम वेट करेंगे जब तक उसका अडियरेंस 95% से ऊपर ना जाए. ओके, सो आपका जो आज पूरा सेशन है इसी पर है. ठीक है, इसमें से अब मैंने काफी प्रतिशत गलत है, 37% गलत है. सो लेट अस जस्ट सी कि क्या गलत है. सो व्हाट आर योर न्यू गाइडलाइंस. ठीक है, सो जो HIV पेशेंट ART पे है, 6 महीना हो गया है, उसका अडियरेंस अगर 95% से कम भी हो तब भी हम उसका वायरल लोड करेंगे. यही आपका मेन चेंज है. आपका जो गाइडलाइंस है 2021 का गाइडलाइंस है, उससे सबसे बड़ा चेंज जो है कि नाउ आप वायरल लोड टेस्टिंग जो करेंगे वो एज पर शेड्यूल करेंगे. ठीक है, तो पेशेंट आया ART पे है एंड देन 6 महीना हो गया है, लेकिन आप देख रहे कि अडियरेंस पुअर है, लेकिन आप किसी चीज के लिए वेट नहीं करेंगे, आप उसका वायरल लोड फिर भी करेंगे एज पर शेड्यूल इररेस्पेक्टिव ऑफ अडियरेंस. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और ये सबसे बड़ा टेक होम मैसेज है ये पूरा आज का सेशन का. ठीक है, सो ऑल दोज हु हैड रिटन, जो 37% थे कि हम वेट करेंगे उसका 95% से ज्यादा अडियरेंस हो, नो, आपके लेवल पे आप उसको एज पर शेड्यूल वायरल लोड टेस्ट करेंगे. ठीक है, उसमें भी आप प्रायोरिटाइज करें उन PLHIV को, क्योंकि हम आपके सेंटर में तो नहीं देखे, हम अपने सेंटर में ही देखते हैं कि बहुत बार 6 मंथ वाला वायरल लोड पेशेंट का मिस हो जाता है. 1 ईयर वाला यूजुअली मिस नहीं होता, पर 6 मंथ्स वाला मिस होते हैं. तो आपका प्रायोरिटी भी होना चाहिए कि जो भी HIV पेशेंट 6 महीने से ज्यादा ART ले लिया है, वायरल लोड टेस्टिंग नहीं हुई है, काइंडली उसका वायरल लोड टेस्टिंग कराए इररेस्पेक्टिव ऑफ अडियरेंस. अडियरेंस कम हो ज्यादा हो डज नॉट मैटर, जस्ट कराएं. ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि फर्दर क्या करना है उस पेशेंट. ठीक है, सो आज का जो टेक होम मैसेज यही स्लाइड में एक्चुअली है, यही आपका टेक होम मैसेज है. डू वायरल लोड टेस्टिंग एज पर शेड्यूल इररेस्पेक्टिव ऑफ अडियरेंस. पहले हम लोग छोड़ देते थे पेशेंट का अडियरेंस पुअर है तो बाबा अभी वेट करो, अडियरेंस इंप्रूव करो, एनहांस अडियरेंस काउंसलिंग करो. ठीक है, यही आपका गाइडलाइंस था कि आपका अडियरेंस अगर पेशेंट अगर अडियरेंस उसका ठीक नहीं है तो वी यूज्ड टू वेट, बट नाउ you do not wait. So what do you do now? और एक पोल्स ज्यादा है. फॉर पेशेंट विद अनसप्रेस्ड वायरल लोड, हाउ लॉन्ग and enhance counseling sessions be continued if adherence continues to remain less than 95%, and timing of repeat viral load testing and SASE referral in such cases. मैम FAQ क्वेश्चन में पोल नहीं है. अच्छा, ये आप लोग आप क्या टाइप करेंगे चैट में? जी मैम. हाँ, चैट में टाइप करें, हम चैट खोल रहे हैं. पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिख दें. हाँ, मैं चैट बॉक्स खोली हूँ. एनीबडी? कितना दिन तक आप ये EAC सेशंस कंटिन्यू करेंगे? ओके, ठीक है. You all are writing. Now let us come back to the session and we will answer that. ठीक है, we will answer that. इसके बाद जो एल्गोरिदम आप देखेंगे उस पर ये आंसर आपको बहुत क्लियरली मिलेगा. ठीक है, आपके ओपिनियन में अडियरेंस किस में ज्यादा अच्छा होगा, फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन? ये तो मैं नहीं पूछूंगी. ये अडियरेंस एक्चुअली आई डू नॉट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज अडियरेंस इंडिविजुअल पे के ऊपर है. ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट लाइन वाले ज्यादा अडियरेंट होते हैं rather than ये सेकेंड लाइन. सो आई डू नॉट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन. कैन आई जस्ट बट फर्स्ट लाइन का दवा एक गोली है. ठीक है, अगर वही नहीं ले पाएगा
तो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन जहां पर आपका ड्रग इमीडिएटली बढ़ जाता है 3 pills एंड ऑलमोस्ट 7 pills फॉर थर्ड लाइन, इट शुड बी मैंने रैशनली इट शुड बी वर्स। ओके, बट ऐसा नहीं होता, इट एक्चुअली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। दिस पोल आई विल नॉट टेक, आई एम जस्ट एंडिंग दिस पोल। सो नाउ इट इज कंडक्ट वायरल लोड, जो आपका शेड्यूल ड्यूरेशन पे है। अगर जैसे 6 महीना है या साल भर एनुअल वाला जो है, वो आप अपना शेड्यूल पे आप वायरल लोड करवाएं। अगर 1000 से कम कॉपी है, कुछ करना नहीं है, कंटिन्यू सेम ART, उसको देखना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 1000 कॉपीज वायरल लोड है, दैट मीन्स वो अनसप्रेस्ड है, ठीक है। सो तो आप आपके जो काउंसलर है वो आपका स्टेप अप अडियरेंस करेंगे 3 मंथ्स पे, एंड देन यू सी कि अगर अडियरेंस आपका लेस मोर देन 95% है, देन इट इज फाइन, आप फिर से वायरल लोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 95% नहीं है, देन अगेन यू वर रेफरिंग बैक, ये आपका 2021 का गाइडलाइंस है। सो लेट अस सी व्हाट यू आर डूइंग नाउ। सो व्हाट यू शेड्यूल पे जब आप किए वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज है, 3 महीना का आप इनहेंस अडेरेंस काउंसलिंग किए, ठीक है। अगर मोर देन 95% है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप फिर से वायरल लोड टेस्टिंग कराएं, ठीक है। अगर वायरल लोड टेस्टिंग जो आप सेकेंड टाइम करवाएं उसमें कॉपीज लेस देन 1000 है, तो गुड गुड, दैट मीन्स अडेरेंस का प्रॉब्लम था, पेशेंट का वायरल लोड सप्रेस हो गया अडेरेंस इंप्रूव करते हुए, एंड आप ART से सेम रेजिमेंट पे उस पेशेंट को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर इस समय आफ्टर गुड अडेरेंस भी आपका वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज जा रहा है, दैट मीन्स वो पेशेंट फेल कर रहा है, मे बी ड्यू टू सम रेजिस्टेंस, ओके, एंड दैट इज अ टाइम यू कैन रेफर टू सैसेट। ये आपका टाइम है, आप सैसेट पे रेफर कर। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिसका अडियरेंस 3 महीने पे भी ठीक नहीं होता है, लेस देन 95% रहेगा। इट्स वेरी कॉमन, आपके सेंटर में भी होगा, हमारे सेंटर में भी होगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू, आप फिर से एनहांस अडियरेंस काउंसलिंग दीजिए इस बार, दैट इज कॉल्ड EAC2। नाउ ये कौन देगा, डिफरेंट काउंसलर। मे बी द फर्स्ट काउंसलर उसको समझ में नहीं आया, ही कुड नॉट, ही और शी वो निकाल नहीं पाए रीजन, ठीक है। लेकिन इस बार जो अडियरेंस काउंसलिंग देगा, जो सेकंड अडियरेंस काउंसलिंग है, वो देगा डिफरेंट काउंसलर, दूसरे आपके सेंटर के दूसरे काउंसलर, और आपको ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स इस पे सुपरविजन करना। So you all have to be involved in this counseling too, ठीक है। एंड आफ्टर द सेकेंड 3 months, ये जो 3 months आप फिर से एनहांस दिए सेकेंड EAC2, तो दैट मीन्स 3 months, दैट इज टोटल 6 months के बाद आपको वायरल लोड टेस्टिंग करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ अडियरेंस लेवल, ठीक है। आप फिर से वेट नहीं करेंगे, अगर इसके बाद भी अडियरेंस लेवल कम रहे डज नॉट मैटर, ज्यादा रहे इंप्रूव कर गया डज नॉट मैटर, यू जस्ट हैव टू डू अ वायरल लोड टेस्टिंग आफ्टर to enhance adherence counts, okay, by many different people with the involvement of the medical officer। तो मेडिकल ऑफिसर भी इन्वॉल्व हुए उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में, इतना ज्यादा आपका स्ट्रेस है वायरल लोड का, सो एवरीबॉडी हैज टू बी इन्वॉल्व, एंड दैट इज व्हाई आई सेड खाली मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट के लिए वायरल लोड नहीं है, आपका भी मॉनिटरिंग इसी से हो रहा है। हाउ गुड अ जॉब यू ऑल आर डूइंग। अब ना ये 6 महीना बाद 2 बार एनहांस्ड अडियरेंस काउंसलिंग के बाद जो आप वायरल लोड किए, इररेस्पेक्टिव ऑफ अडियरेंस लेवल, अगर लेस देन 1000 चला गया तो वेरी गुड, कंटिन्यू द सेम रेजिमेंट। लेकिन अगर मोर देन 1000 कॉपीज है, आपको सैसेट में इसको रेफर करना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किया है, आपका जो मैंने आपके ऊपर जो काम मैंने बार बार अडियरेंस काउंसलिंग का बर्डन है, दे हैव गिवन इट फॉर 6 months, पहले वाला 3 months and then second 6 months, and then you just do a viral load, okay, and let the SASEP deal with it, okay। So ये जो डबल स्टार दिया है, this I have a lot of complaint about, because बहुत लोग ये कंप्लीट इवेल्युएशन एंड रिव्यू नहीं करके पहले SASEP में भेज देते हैं, ताकि, लेकिन आप ये मत समझिए SASEP में आप दूसरे एक सेंटर पे जा रहे हैं जहां आपके मरीज को वो नहीं जानता है, SASEP वाले वो बैठ करके खाली पेपर देख रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, सो यू हैव टू पुट इट इन वर्ड्स। आप
अच्छा से लिखिए एंड लिख करके भेजिए कि क्यों भेज रहे हैं, पहले वायरल लोड कब हुआ, उस समय अडेयरेंस क्या था। ये सब डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेशेंट आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। डोंट पुट ऑल जिम्मेदारी सब सैसेप के लिए, सैसेप का पेशेंट नहीं है वो, ठीक है, सैसेप वाले सेंटर का पेशेंट नहीं है। सो आप लोग को अच्छा से इवेल्युएट करके, रिव्यू करके, लिख करके, पुट इट इन डॉक्यूमेंटेशन एंड देन सेंड टू सैसेप, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द चेंज, ठीक है। डोंट, आप अगर 6 महीना 2 बार इनहेंस अडेयरेंस काउंसलिंग विद डिफरेंट पीपल दे दिए हैं एंड आप एज अ मेडिकल ऑफिसर भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, देन यू डू अ वायरल लोड आफ्टर 6 months irrespective of the adherence level and send to SASEP अगर आपका वायरल लोड more than 1000 copies है, that is unsuppressed। तो ये क्यों, ये क्यों किया गया है, ये सब मतलब ये चेंज क्यों किया है, ताकि एक बेटर डिफाइंड प्रोसेस इज बेटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ PLHI विद अनसप्रेस, ये पेशेंट के लिए बेटर किया गया है। क्वालिटी ऑफ एनहांस अडेयरेंस काउंसलिंग बेटर हो, ताकि लोग डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हो, ठीक है, एंड वो लोग फाइंड आउट करें कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है इस पेशेंट के साथ एंड उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। एंड बेनिफिट पेशेंट को एक्चुअली दिया जा रहा है। पहले जैसे अडेयरेंस स्कोर होता था तो बहुत मैंने आपको सेंटर में ही रह जाता था पेशेंट एंड वो आगे नहीं बढ़ पाता था, ठीक है। एंड ये क्योंकि अडेयरेंस इशू को लिंगर करके भी बहुत फायदा नहीं होता है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग को एज एमओज एंड एसएमओज को इन्वॉल्व करने के लिए इन एंश्योरिंग वायरल सप्रेशन, बिकॉज ये आपका भी टेस्ट है कि पेशेंट का वायरल लोड सप्रेस रहे एंड आपका सेंटर का ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड रहे। एंड एक बैलेंस बनाने के लिए ये किया गया है ताकि अननेसेसरी स्विचेस भी ना हो, ठीक है, ताकि आपका सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन का बर्डन ना बढ़े। एंड बहुत देर तक एक रेजिमेंट जिसमें आप फेल कर रहे, अगर उस रेजिमेंट में कोई भी PLHIV को रख दें तो आपका रेजिस्टेंट म्यूटेशंस बढ़ता है एंड जो आपका जो नेक्स्ट रेजिमेंट आप पेशेंट को देंगे वो भी फेल कर जाता है। स्पेशली ये कॉमन है बिटवीन योर फर्स्ट लाइन एंड योर सेकेंड लाइन। अगर आप बहुत दिन तक TLD या फर्स्ट लाइन रेजिमेंट पे अगर जो फेल कर रहा है उस पर रख दें, तो सेकेंड लाइन रेजिमेंट जिसमें आपका NRTI ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, वो रेजिमेंट बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है। सो बिकॉज वो वायरस बहुत सारा म्यूटेशंस अक्वायर कर लेता है। सो ये दोनों में बैलेंस बढ़ाने के लिए और स्पेशली आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए ये चीज किया गया, ये चेंज लाया गया। सो कहना है जैसे इसको थोड़ा सा, ये जो हेडिंग है इसको थोड़ा सा हटा दे सकते हैं। विशाल सर, वहां पे आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर वो बार में, मोर 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 करके जी, वहां पे अगर आप क्लिक करते हैं तो हाइट फ्लोटिंग बार करके एक ऑप्शन आता है। ओके, थैंक यू। गॉट इट मैम? या हाइट थैंक यू। फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स, जी दैट, जी जी जी, सेम वन मैम। थैंक यू। What does additionality in viral log algorithm not mean, ठीक है, इसका क्या मतलब नहीं है। भी सबसे इंपॉर्टेंट है अननेसेसरी स्विच ना हो, ठीक है, बिकॉज कि जिसका वायरल लोड अनसप्रेस रह गया, ठीक है, सबको स्विच से फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? हो सकता है वो खा ही ना रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसमें कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रहा हो। हाँ, तो सबको आप अगर फटाफट चेंज कर दे स्विच करके तो ऐसे नहीं बेनिफिट हो। तो वी हैव टू एक्चुअली पिकअप दोज पेशेंट जिसको स्विच दवा चेंज करने से फायदा मिले, ठीक है। एंड ये पर्पस ऑफ रेफरल टू सैसप है कि फिर से और एक बार इन डेप्थ रिव्यू इनटू अडियरेंस एंड क्लिनिकल इश्यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको थर्ड पार्टी को दे दे रहे, जो कि आपने जो किया है उसको फिर से रिव्यू करेगा एंड और सब क्लिनिकल इश्यूज को भी साथ में देखेगा विच यू माइट हैव मिस्ड, एंड दिस इज वेरी कॉमन। डोंट थिंक ये कॉमन नहीं है। आप बहुत बार होता है आपने आप सेंटर से हमारे पास सैसप में भेज देते हैं एंड यू डोंट सी कि उस समय दवा नहीं था, वो एक दवा खा रहा था, आपने वायरल लोड कर लिया, उस समय 2 दिन वो छोड़ा था दवा, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि उस समय वायरल लोड क्यों किए, आप दवा खा करके 1 वीक बाद आइए, 1 मंथ बाद आइए, आपने वो 2 दिन वायरल लोड जब छोड़ा तब जाकर के आपने
वायरल लोड फिर से रिपीट कर दिया। लिटरल इश्यूज, आपका कुछ कुछ ड्रग इंटरेक्शन है, लॉट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम और एंटासिड ले रहा है एंड यू हैव नॉट सीन, ठीक है, एंड हो सकता है द पेशेंट हैज अनदर ओआई विच यू आर मिसिंग। सो ये सब चीज आते हैं, ऐसे बात नहीं है। सैसप में बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग तुरंत स्विच नहीं कर देते हैं, ठीक है। सो वी जस्ट रिव्यू एंड जस्ट सी कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत बार 100% आपके वाइट कार्ड का जो आप फोटो कॉपी भेजते हैं उसमें 100% एडियरेंस लिखा रहता है, बट यू आस्क द पेशेंट एंड देन दे से कि नहीं, इस समय मिस हो गया। सो दिस हैपेंस एंड दैट इज व्हाई ये, ताकि ये रिव्यू बेटर हो पेशेंट का इश्यूज सॉल्व हो, उसीलिए ये एल्गोरिदम को चेंज किया गया है। सो दैट इज वाई, इसका मतलब है कि हर बार अगर वायरल लोड नॉन सप्रेशन है, दैट डज नॉट मीन एआरटी फेलियर, ठीक है। ये डीटीजी आपका जो दवा है, इट इज एन एक्सीलेंट ड्रग, ठीक है। इट वाज ब्रॉट, वो लेके ही आया गया था, क्योंकि ये जब पेशेंट का वायरल लोड अनसप्रेस भी रहता है ऑन डीटीजी, उनमें बहुत लोगों में रेजिस्टेंस म्यूटेशंस पाया ही नहीं गया है, ठीक है। जो एक एनालिसिस हुआ था, सिस्टमैटिक एनालिसिस बोलते हैं, तो उसमें देखा गया था द प्रेवलेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस कितना है HIV पेशेंट में जिसका वायरल लोड अनसप्रेस्ड है इन डीटीजी बेस्ड रेजिमेंट, जो कि हम लोग का फर्स्ट लाइन है। तो उसमें लिखा गया है कि इट वाज खाली ड्रग रेजिस्टेंस 1.6% देखा गया है ऑन दोज की जो कि पहले भी बहुत सारे ART दवा लिए हैं और अभी वायरल लोड अनसप्रेस्ड है बिफोर चेंजिंग इनटू डीटीजी बेस्ड रेजिमेंट। और अगर जो लोग नेव है, ठीक है, या जब चेंज किया हुआ है पेशेंट का वायरल लोड, चेंज के समय सप्रेस वायरल लोड सप्रेस था, उनमें तो बहुत 0.1% में कोई ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेशंस आया है विद डीटीजी। एक्चुअली डीटीजी ये प्रोग्राम में ही आया, रिकमेंडेशन WHO का तभी हुआ बिकॉज दे न्यू कि इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट म्यूटेशन नहीं होता है, एंड सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट म्यूटेशन जैसे आपका NNRTI से होता है, ठीक है। सो इसीलिए ये माइंड में होना चाहिए कि वायरल लोड नॉन सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू ART फेलियर, एंड दैट इज व्हाई आप लोग इतना बार अडेरेंस काउंसलिंग एंड 2 बार कर रहे हैं, देन यू आर सेंडिंग इट टू अनदर प्लेस टू बी रिव्यूड अगेन फॉर द, फिर से सैसप के पास फिर से रिव्यू करने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ केयर इंडिकेटर्स जो कि आपके सेंटर के लिए है, वो आपका ऑन ART पिकअप टाइमली होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए, वायरल लोड टेस्टिंग कवरेज भी अच्छा होना चाहिए, एंड अल्टीमेटली वायरल लोड सप्रेशन भी होता है। ये सभी से ऑल इस इंडिकेटर्स से आप ये प्रोग्राम को जज किया जाता है। सो व्हाट आर द अदर पॉसिबल रीजन, क्या हो सकता है कि वायरल लोड अनसप्रेस्ड है? सो सबसे पहले एंड मोस्ट कॉमन इज पुअर अडियरेंस। पेशेंट दवा नहीं ले रहा है, पिल नहीं है, पिल पिकअप एक दिन मिस हो गया, ठीक है, या परमानेंटली LFU हो गया, वॉट एवर इट इज। तो पुअर अडियरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कॉज है अनसप्रेस्ड वायरल लोड के, ठीक है। सो सब ऑप्टिमल इनटेक ऑफ ARV, कुछ कुछ ले रहा है, ठीक से नहीं ले रहा है, एंड कभी कोई भूल जा रहा है, कभी कुछ भूल जा रहा है, या कोई दवा खाने से उसके माइंड में घुस गया कि इसी से एडवर्स इवेंट हो रहा है, तो वो नहीं खा रहा है, दूसरा खा रहा है, ठीक है। सो अगेन अडियरेंस, ठीक है। थर्ड थिंग जो हो सकता है कि सब ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, या दवा का इंटरेक्शन है, उसलिए दवा आपके लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है बॉडी में, ठीक है। एंड बहुत बार बोले हैं हम लोग, काफी सेशंस में ये आप लोग को पढ़ाया गया है कि डोंट गिव अननेसेसरी विटामिन एंड कैल्शियम्स एंड आयरन्स एंड सप्लीमेंट्स, कि पेशेंट बहुत सिक है तो आप ये सब लीजिए, इट इज वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब, ठीक है। सो हमारे ART सेंटर में आप लोग बहुत कम देखेंगे, बिकॉज ये जो पॉलीवेंट कैटायंस है, जैसे कैल्शियम दिए, आयरन दिए, और मल्टीविटामिन में जिसमें जिंक मैग्नीशियम वो सब रहता है, उससे आपका डीटीजी का इंटरेक्शन है। तो अगर आपको किसी कारण वश देना भी पड़ रहा है, तो डीटीजी को एटलीस्ट बोल दीजिए पेशेंट को कि डीटीजी को एटलीस्ट 2 घंटा पहले ले, या 6 घंटा खाने, ये दवा खाने के 6 घंटा बाद ले, नहीं तो डीटीजी का अब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो, ठीक है। एंड द सेकेंड, यू ऑल नो टीबी एंड रिफैम्पिसिन एंड डीटीजी, अगर रिफैम्पिसिन दे रहे हैं तो इंश्योर कि डीटीजी का डोज आपने बढ़ा दिया। सो
सब ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन भी एक कारण हो सकता है आपका वायरल लोड सप्रेस नहीं होने का। ठीक है। एंड ये देखा गया है, ये हमको लगता है नैको का अपना डेटा है कि अगर आप ठीक से अडेरेंस काउंसलिंग करें एंड तो आप मेजॉरिटी पेशेंट्स में ड्रग स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर अगर देखें कि अगर 14,000 नाको का डेटा है, ये 14,786 पेशेंट है जिसका वायरल लोड मोर देन 1,000 है। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ESE मैंने एडवांस काउंसलिंग चालू किए तो 1,000 तो ऐसे ही कम हो गया। ठीक है। रिपीट वायरल लोड जिसमें हुआ ओनली 80% में आपका हुआ, 20% में किया ही नहीं, जो कि मिस हो गया। ठीक है। आउट ऑफ दैट 80% मैंने ऑलमोस्ट ओनली 15%, दैट इज 1,500 में वायरल लोड मोर देन 1,000 आया। ठीक है। उसके बाद मोर देन 1,500 आया। सो व्हाट यू कैन सी इज कि 14,000 में से वायरल लोड आफ्टर एनहांस काउंसलिंग ओनली 15% में आपका वायरल लोड मोर देन 1,000 आया। ठीक है। एंड उसमें भी अगर सैसेट के पास हर जगह मिस भी देख लीजिएगा, ये मिसेस है, ये जो डॉटेड लाइंस है ऊपर, कितने कितने लोग में मिस हो गया। ठीक है। वो भी आपका एक प्रॉब्लम है विच आपको प्लग इन करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जिसमें आपका टेस्टिंग हुआ 10,000 में जो टेस्ट की, उसमें मेजोरिटी 85% आपका वायरल लोड सप्रेस हो जाएगा। ओनली 15% में आपका वायरल लोड सप्रेस नहीं होगा। उसमें से भी जब आप रेफर करेंगे सैसेट में तो हार्डली उसका हार्डली 12% में आपका ड्रग चेंज होगा। ठीक है। सो ये खाली ये स्लाइड शो करता है कि आपका जो अडेरेंस काउंसलिंग कितना मैटर करता है इन डिक्रीजिंग द वायरल लोड सप्रेशन। ठीक है। सो ये मिस को भी आप लोग को देखना चाहिए, प्लग इन करना चाहिए अपने ERT सेंटर में कि ये मिस ना हो जाए। वायरल लोड टेस्टिंग मिस हो जाता है, कभी कभी रेफरल मिस हो जा रहा है सैसेट में। सो वो सब ना हो। लेकिन जो हो भी रहा है उसमें बहुत कम लोगों को सैसेट को चेंज करना पड़ रहा है दवा। ठीक है। दैट इज वाई ये रैशनल है कि वाई आपका एनहांस अडेरेंस काउंसलिंग होना चाहिए। ठीक है। सो अगर आप 7 पेशेंट देखें, अराउंड 7,758 पेशेंट देखें जिसका वायरल लोड सप्रेस नहीं है, 85% में देखा जाएगा कि वो इरेगुलर पिल पिकअप किया है। ठीक है। और ये लास्ट 6 महीना में तो मोस्टली आपका अडेरेंस इशू है, आ नहीं पा रहा है ये इशू है, आ भी जा रहा है तो खा नहीं पा रहा है, ये सब इश्यूज है। ठीक है। हार्डली 15% होंगे जो कि एकदम टाइमली आ रहे हैं, टाइमली दवा खा रहे हैं। ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो रीजंस पेशेंट नहीं आ पाए। जैसे अभी बरसात है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू हैव मैंने बरसात में अपने आपके ERT सेंटर आना, उनके लिए भी सोचिए। और अभी जैसे ड्रग शॉर्टेजेस था, जबरदस्त शॉर्टेजेस था, एवरी सेंटर में होगा। आप 15 दिन का दे रहे थे, 7 दिन का दे रहे थे, एंड देन यू वर अज्यूमिंग कि वो हर बार टाइमली आए, हर बार टाइमली दवा खाए। सो दोज आर ऑल्सो रीजन। आपका ड्रग्स नहीं है, वो सब वो भी है, बार बार बुलाना पड़ रहा है, उससे फेथ लॉस भी होता है। सो फिर से आपका काम एज ए काउंसलर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स है कि वो फेथ वापस लेके आए पेशेंट में आपके ऊपर। नॉट एन इजी जॉब, बट देन यू हैव टू डू इट। ठीक है। सो आपका क्या क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो फर्स्ट अडेरेंस काउंसलिंग होगा उसका। ठीक है। तो आपका जो वायरल टेस्ट रिपोर्ट जैसे आता है, ये भी आई वांटेड टू से बहुत सारे सेंटर्स में वायरल लोड का टेस्ट रिपोर्ट इज कमिंग इन 4 मंथ्स एंड 5 मंथ्स। आई थिंक सैक्स को ये देखना चाहिए कि इस तरह से ना हो, तो नहीं तो ये पूरा चीज फेल हो जाता है। ये जो सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है, ये सिस्टम ही फेल हो जाएगा अगर आपका वायरल लोड टेस्टिंग का रिपोर्ट 6 महीना 4 महीना बाद आए। ऐसी सैसेट में आप लोग रेफर करके भेजते हैं कि भेजा गया था फरवरी में, अभी आया जून में। तो आई कैन ब्लेम यू ऑल, बट दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व बाय सैक्स। ठीक है। सो जब वायरल लोड टेस्टिंग रिपोर्ट अवेलेबल हुआ, एक लाइन लिस्ट बनाइए PLHIV का जो उसका वायरल लोड मोर देन 1,000 है, एंड शेयर काउंसलर को शेयर कीजिए, एंड सो दैट वो टेलीफोनिकली उस पेशेंट को फॉलो अप करे एंड एनहांस अडेरेंस काउंसलिंग दे फॉर मिनिमम ऑफ 3 months।
आप इसमें चाहे तो उनको बुला करके एडिशनल सेशंस के लिए भी काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड इसका मेन एम है कि फाइंड आउट कि क्या बैरियर्स है एंड उस बैरियर का सोल्यूशन दीजिए। डोंट स्क्रीम एंड शाउट एट देम, यू हैव टू फाइंड कि क्यों नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, एंड फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ईएसी जो है एक ही काउंसलर को लेना है। ठीक है, वो केस मैनेजर हो जाएगा, सो दैट द पेशेंट कैन इंटरैक्ट एंड टेल देम प्रॉपरली एंड गेट अ सोल्यूशन। ये इसके लिए होता है। ठीक है, आप उसको 15 दिन पे भी रख सकते हैं सेशन, 1 महीना पे भी रख सकते हैं, ये आप काउंसलर का डिसीजन है। ठीक है, एंड हर बार पेशेंट जब कलेक्ट करने आता है दवा, तभी आपका काउंसलिंग सेशन होने से बेटर होता है। ठीक है, एंड एक ईएसी फॉर्म है, उसको आपको बहुत अच्छा से दिया हुआ है। ईएसी फॉर्म बाद में आएगा इस सेशन में, लेकिन आप लोग सबके पास ईएसी फॉर्मेट होना चाहिए एंड उसी में आप काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, और इट विल बी गुड कि एसएमओ एंड एमओस दोनों इसमें इन्वॉल्व हो इस काउंसलिंग प्रोसेस में, ताकि वो खाली काउंसलिंग अभी ना देखे, वो क्लिनिकल कंडीशन भी देख ले, कोई ओआई तो नहीं है, कोई दवा का साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई और कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन तो नहीं है जिससे उसका दवा अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो अगर शुरू से अगर एमओज एंड एसएमओज इसमें इन्वॉल्व हो तो पेशेंट का आउटकम बेटर होगा। तो ये काम है एसएमओज एंड एमओज का भी कि आप इसका ख्याल रखें कि कौन पेशेंट है जिसका नहीं वायरल लोड सप्रेस्ड है, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ये सारा चीज देखे एंड काउंसलर्स आपको उसमें हेल्प करेगा टू सी कि अडेरेंस का अगर प्रॉब्लम है तो क्यों। तो सेशन 1 2 3 में ऑलमोस्ट सेम है, आई विल नॉट रीड इट आउट। ठीक है, ये रीड आउट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर अडेरेंस ये फर्स्ट ईएससी के बाद अडेरेंस मोर देन 95% है हर एक 3 महीने में, एवरी मंथ में, तो वायरल लोड टेस्टिंग के लिए आप प्लान कीजिए। ठीक है, आप वायरल लोड टेस्टिंग का प्लान कीजिए एंड अगर अडेरेंस ठीक नहीं है तो आपको इस पेशेंट के लिए फर्दर सेशंस करना है। देन आई हैड टोल्ड यू ये सेशंस जो है दूसरा कोई काउंसलर करेगा, एंड इसमें तो एसएमओ को डेफिनेटली इन्वॉल्व होना जरूरी है। ठीक है, और अगर वायरल लोड अगर पेशेंट का अडेरेंस अच्छा था, आपने वायरल लोड किया एंड वायरल लोड सप्रेस इस बार भी नहीं है, तब आपको ई रेफरल करना है सैसप में विद इन 2 days ऑफ रिसीविंग द वायरल लोड रिपोर्ट। ठीक है, आपको पेशेंट के वेट करने की जरूरत नहीं कि पेशेंट जब आएगा तब हम सैसप में भेजेंगे, आप ई रेफरल भेज दीजिए। एंड सैसप का काम है विद इन 1 week आपको रिकमेंडेशन दे करके आपके पास भेजे। ठीक है, एंड उस हिसाब से आप पेशेंट को फिर इन्फॉर्म करेंगे, बोलेंगे कि एआरटी सेंटर आइए, आपके लिए ये चेंज करना है या कंटिन्यू करना है, वो डिसीजन आप पेशेंट को बुला करके देंगे। ठीक है, सो ये आपका जो फॉर्मेट है, ये आपके पास सभी के पास ये होगा। ठीक है, एंड हर बार आप ये पिल काउंट देखेंगे, अडेरेंस का अपॉइंटमेंट ये देंगे एंड रिव्यू करेंगे अडेरेंस का, आइडेंटिफाई करेंगे बैरियर्स ऑफ ऑप्टिमल अडेरेंस की, अब पेशेंट को दवा के बारे में जानेंगे कि मोटिवेशन है कि नहीं, साइड इफेक्ट्स हो रहा है कि नहीं, उसके वर्किंग टाइम के साथ वो इंटरफियर कर रहा है कि नहीं, पेशेंट डिप्रेशन में तो नहीं है, और कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन इन दैट, ये कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन वाला पार्ट में एमओस की जरूरत है। ठीक है, बहुत बार पेशेंट काउंसलर्स को ये नहीं बोलते कि हम तो ये दवा यहाँ से ले रहे हैं लेकिन कुछ और दवा हम कहीं और डॉक्टर से ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन। यू डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, वो आंसर देगा भी नहीं कि ये तो खाली एचआईवी वाला दवा यहाँ से चलता है, मेरा हार्ट का दवा तो कहीं और से ले रहे हैं, मेरा बोन का दवा तो कहीं और से ले रहे हैं। ठीक है, सो वो भी पूछना बहुत जरूरत होता है, एंड दैट इज वेयर ऑल द मेडिकल ऑफिसर शुड हेल्प। ठीक है, एंड पेशेंट को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जो सेशन 2 है, अगेन इसमें आप फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट आपका जो बना हुआ है, इट्स इट्स गिवन वेरी नाइसली एक्चुअली। आप इसी को अगर फॉलो करेंगे तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सो एंड असेस अडेरेंस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे पेशेंट को। बहुत बार हम लोग बहुत ओवरबर्डन होते हैं, सबसे पहले पेशेंट को डांट ही देते हैं। ठीक है, खाली आप नहीं, हम लोग भी कभी कभी डांटते हैं, बट लेट अस बी, मैंने उनको हेल्प करना है रादर देन उनको हम लोग से दूर करना, ये हमारा एम नहीं है। ठीक है, अगर ये अडेरेंस प्लान काम नहीं कर रहा है, चेंज द अडेरेंस प्लान। ठीक है, एंड चेक अगेन द पिल काउंट एंड राइट डाउन द अडेरेंस, डोंट राइट। तो देख के भी बहुत बार लगता है अडेरेंस, आप लोग का जो अडेरेंस लिखा रहता है नॉर्मल वाइट कार्ड में कि एक ही बार में 100% लिख दिया गया है,
and when you ask the patient, he or she gives another answer. So do it properly. ठीक है. Now session 3 है, again आपने adherence को रिव्यू किया, सपोर्ट किया प्लान को. ठीक है. अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है फर्दर. अगर अडियरेंस मोर देन 95% है 3 महीना में, ठीक है, देन आपको वायरल लोड रिपीट करना है. अगर वायरल लोड लेस देन 1000 कॉपीज है तो वेल एंड गुड, पेशेंट इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, कंटिन्यू द करंट रेजिमेन. अब 1000 कॉपीज से ज्यादा अगर है, अनसप्रेस्ड है, तो ई रेफर कर दीजिए सैसेट पे, बिकॉज नाउ यू वर्कड ऑन द पेशेंट एंड द पेशेंट का अडियरेंस अच्छा था. ठीक है. पर अगर अडियरेंस में उसका पेशेंट का ऑप्टिमल अडियरेंस नहीं है, दैट इज 95% से कम है, यू हैव टू प्लान द सेकंड 3 सेशंस ऑफ EAC. ठीक है. प्लान फर्दर सेशन बिफोर रिपीटिंग द वायरल. सो इस समय ये दिस इज द लाइन लिस्ट ऑफ योर पेशेंट विद अनसप्रेस्ड वायरल लोड. इसमें आप देख लीजिए स्टेप अप अडियरेंस सेशन 1 का डेट, then session 1 का adherence date for the second, third, सब कुछ अच्छा सा लिखा है. You have to put in all the datas here. ठीक है. तो completed हुआ कि नहीं, date of viral load testing हुआ कि नहीं. ठीक है. ये सारा कब आपका आप सैसेट में उसको रेफर किए हैं. ठीक है. डिफरेंशिएटेड केयर फॉर अनस्टेबल PLHIV. जो पेशेंट पुअर एडियरेंस का है and जिसका अडियरेंस पुअर है, इधर ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग टाइमिंग नहीं बैठ रहा है उसको दवा खाने का. ठीक है. उसको आप उसके लिंक सेंटर में ही भेज सकते हैं, ताकि वो जो कि आप उनके घर के पास हो. पर आपको फॉलो अप करना है. अगर LAC में भेज रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाता है LAC में भेज करके. ये आपको भी फॉलो अप करना है कि LAC में भेज करके पेशेंट का अडियरेंस का इम्प्रूव हुआ. ठीक है. तो ये केस टू केस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है. ठीक है. आप हेल्प ले सकते हैं डिफरेंट CSC से, अदर NGO से, TIs, तो डिफरेंट आप एजेंसी से हेल्प ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल पेशेंट. ठीक है. नाउ अब उनका क्या करेंगे जिनका अडियरेंस कम था, तो आपने वायरल लोड नहीं कर पाए इसमें, तो आप इनमें फिर से एडवांस अडियरेंस काउंसलिंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 months. दैट इज कॉल्ड EAC2. एंड इसमें आप डायरेक्ट सुपरविजन आ जाएंगे SMO एंड MO का, अलॉन्ग विद अ डिफरेंट काउंसलर. ठीक है. अलॉन्ग विद डेली टेलीफोनिक फॉलोअप और होम विजिट ईदर CSC आउटरीच वर्कर्स के थ्रू. ठीक है. एंड इसमें फिर से बैरियर्स टू अडियरेंस का आप देखेंगे क्या है एंड उसको एड्रेस करेंगे. एंड पेशेंट डॉक्टर्स को, वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर्स है, उनको स्पेशल अटेंशन इनको देना पड़ेगा. ठीक है. एंड जिसका तुम EAC2 चल रहा है, इसको रिगरसली इसको 3 महीना का दवा एक साथ दे दिए, वो सब नहीं चलेगा. इसको फॉलोअप भी करना है, फोन कॉल से भी करना है, CSC को भी बोलना है, जिससे हेल्प लेना है ले करके इसको फिर से इम्प्रूव करवाना है. ठीक है. ना जब ये 3 months ऑफ EAC2 हो गया है, इसके बाद आपको एडेरेंस देखना नहीं है, ऑफकोर्स नोट डाउन करना है, पर इस बार आपको वायरल लोड फिर से करना ही करना है. ठीक है. सो इररेस्पेक्टिव ऑफ एडेरेंस एट EAC2, एंड ऑफ EAC2 आपको करना ही है वायरल लोड. अगर वायरल लोड सप्रेस हो गया, वेल एंड गुड फॉर यू ऑल. अगर नहीं सप्रेस हुआ, इस बार आपको ई रेफरल टू सैसेप करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दवा खाया कि नहीं खाया. दैट मीन्स you have failed the patient actually at your ART center. Maybe not your fault at all, but that is what it says. Okay, now you have referred the patient to another agency, that is SASEP, who is above you. Okay. Now please read the last star जो लिखा है, ये बहुत important. Physical presence of such PLHIV. जब भी पॉसिबल हो, अगर पेशेंट सैसेप के पास आता है, इट इज बेस्ट फॉर सैसेप. यू डू नॉट नो हम लोग कितने लोग में कितना चीज निकालते. वो पेशेंट आपके सेंटर का है, मे बी आपसे डरता है, आपको सही बात नहीं बोलता है. ठीक है. मे बी आप सही क्वेश्चन नहीं पूछे उस पेशेंट को. बट बहुत बार सैसेप में पेशेंट आके बोलते हैं कि ये दवा नहीं खा पाए थे, इस समय नहीं हुआ था, इस समय कुछ और था, जो कि आपको नहीं बोला है. आपने 100% लिखा है. तो सैसेप के लिए पेशेंट को इधर वर्चुअली देखना या फिजिकली प्रेजेंट, फिजिकली तो बहुत ही अच्छा होता है, एंड या वर्चुअली अगर देखे, देन
ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब फिजिकल प्रेजेंस इधर चाहिए होगा, या टेली सैसअप आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या वर्चुअल कॉल करके आप ये सैसअप में इस पेशेंट का इंटरेक्शन सैसअप के साथ कराएंगे। ठीक है, सो दैट सैसअप मेंबर्स भी जाने कि क्यों इसका अटेंडेंस पुअर है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को, अब हम लोग को सैसअप से आपका पेशेंट को इंटरेक्ट करना है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सैसअप अगर सैसअप इंटरेक्ट नहीं करता है। एंड आई कैन टेल यू कि जब सैसअप इंटरेक्ट करता है वो बेटर रिजल्ट देता है। तो इस बार जब आप रेफर कर दिए, वायरल लोड सप्रेस नहीं हुआ 6 महीना बाद भी, काउंसलिंग के बाद भी, एंड आपका पूरा एफर्ट के बाद, तो ये पेशेंट को सैसअप इन डेप्थ रिव्यू करेगा, रीअसेस करेगा एडियरेंस में एंड उसका बेरियर्स का पूरा हिस्ट्री लेगा, एडिक्शंस की देखेगा, अब्यूज देखेगा, ओआईज देखेगा, कोमॉर्बिडिड कंडीशन एंड उसका दवा देखेगा, एंड सैसअप का काम है मेंटल हेल्थ भी चेकअप करेगा। ठीक है, सो एंड कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन जो कि आपको भी चेक करना चाहिए तो वो भी देखेगा। नाउ इफ पेशेंट अगर नॉन एडहेरेंट है और कोई कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशंस पे है, तो ये तो करेगा ही, एंड ये पेशेंट वीकली फॉलोअप भी करना पड़ेगा। एंड बिकॉज सैसअप उसको तुरंत दवा तो चेंज करने वाला नहीं है, सैसअप दवा चेंज करके भी फायदा नहीं है। जब आप एक दवा ले रहे हैं पेशेंट को फर्स्ट लाइन में, वो 3 दवा वो भी नहीं खा रहा है, तो 3 दवा सेकेंड लाइन में और 7 दवा थर्ड लाइन में तो खाने से रहा। ठीक है, अगर अडियरेंट आपको सैसअप को लगता है कि नहीं पेशेंट अडियरेंट था, तो सैसअप अप्रोप्रिएट स्विच करेगा। लेकिन अगर सैसअप को लगता है कि नहीं पेशेंट अडियरेंट नहीं है, तो फिर भी हम लोग कुछ कुछ उसको फॉलो अप करेंगे, एंड ईएसी एनहांस अडियरेंस के लिए आपको फिर से सैसअप वापस भेज दे सकता है। ठीक है, तो आपको उन पेशेंट को वीकली फॉलो अप नीड्स टू बी डन विद दोस पीएलएचआईवी हु आर पुट बैक ऑन एनहांस अडियरेंस काउंसलिंग बाय द सैसअप। तो अगर सैसअप को लगा कि नहीं इसको और अडियरेंस काउंसलिंग की जरूरत है, तो आपको उनको और क्लोजली पेशेंट को फॉलो अप करना पड़ेगा। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग मिस्ड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अगर पेशेंट का अपॉइंटमेंट नहीं आए या डेली मिस लिस्ट आपको बनाना है। ठीक है, ये बहुत इजी नहीं होता है स्पेशली हाई बर्डन सेंटर्स में, क्योंकि बहुत बार होता है कि लिखा है आपके इतना पिल्स है लेकिन पेशेंट के पास 4 पिल पहले से था, तो आपका मिस लिस्ट भी गलत गलत आ जाता है। लेकिन ये मिस लिस्ट बनाने का ट्रेंड तो बहुत पुराना है, सो यू शुड डू इट। इट गिव्स यू एन आइडिया कि कौन कौन पेशेंट नहीं आ रहा है। अगर वो फोन करके बोलने से कि हम ऑलरेडी ले गए हैं, मेरे पास दवा था, देन इट इज फाइन। ठीक है, so from above, generate list of patients who were supposed to come the previous day but did not come by this end. तो अगर वो उसको कल आना था लेकिन आज भी नहीं आया है, तो एक मिस लिस्ट बनाना चाहिए डेटा मैनेजर को, एंड इसको शेयर करना चाहिए एसएमओ और एमओ इंचार्ज से, एंड एमओ एंड एसएमओ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फोन टेलीफोनिक फॉलो अप in between all the staff. Every staff of ART should be involved in bringing missed patients also. तो चाहे केयर कोऑर्डिनेटर हो, काउंसलर्स हो, नर्स हो, एलटीओ, एसएमओ हो, कोई भी है, यू जस्ट रिंग अप एंड आस्क द पेशेंट क्या हुआ, क्यों नहीं आया। ठीक है, एंड रेस्पेक्टिव स्टाफ जो कंटैक्ट करेगा विद इन 24 आवर्स थ्रू फोन कॉल, एंड वो डॉक्यूमेंट करेगा मैंने क्या हुआ, आप जब फोन किए तो क्या हुआ उसका आउटकम। ठीक है, एंड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आपको सीएससी को देना है, वो पूरा जो जो आप फॉलो अप किए उसको सीएससी को दीजिएगा फॉर होम विजिट। ठीक है, डेटा मैनेजर ये देगा। एंड पीएलएचआईवी जो नॉट रीच्ड आफ्टर 3 फोन अटेम्प्ट्स ऑन डिफरेंट डेज और टाइम्स और डू नॉट अग्री टू कम, और पेशेंट डिड नॉट रिटर्न विद इन 7 डेज ऑफ ड्यू डेट, 7 दिन के अंदर नहीं आया, या 3 टेलीफोनिक कॉल्स के बाद भी वो पेशेंट इधर अग्री नहीं हुआ या नहीं आया, तब सीएससी को उसको घर में जाकर के फॉलो करना है, होम विजिट करना है, एंड सीएससी स्टाफ को ट्रैक करना है ऑल पेशेंट जो है मिस एंड एलफ्यू पता चला है वाया कंटिन्यूड फोन कॉल्स एंड होम विजिट, ये सीएससी के ऊपर है। सीएससी हर एक, जैसे हमारे सेंटर में सीएससी खाली बनारस का है, तो लेकिन हमारे पेशेंट तो गाजीपुर, आजमगढ़ सब जगह के, देन ही विल कंटैक्ट, दे विल कंटैक्ट सीएससी ऑफ दोस प्लेसेस एंड गेट अ होम विजिट डन, वो उनका गाइडलाइंस में। ठीक है, एंड सो दैट वी कम टू अ डेफिनेट आउटकम। ठीक है, डेफिनेट आउटकम मीन्स सीधा पेशेंट वापस आएगा, या हमको पता चलेगा कि वो एक्सपायर कर गया, या
पेशेंट बोलेगा हमको लेना ही नहीं है, या पेशेंट कहीं और से दवा ले रहा है एंड हैज बीन ट्रांसफर्ड आउट। ठीक है, ये इसको डॉक्यूमेंट करना है आपके IMS में एंड वाइट कार्ड में। एंड जिसमें इनडेफिनेट आउटकम्स है, दैट मीन्स पेशेंट अभी भी पता नहीं चला, इवन आफ्टर ट्रैकिंग एफर्ट, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है एंड बीच बीच में फॉलो अप भी करना है। ठीक है, सो ये वाला पोल लीजिए एंड ये हमको बताइए कि PLHIV जिसको ट्रैक किए हैं हम लोग आफ्टर लॉस टू फॉलो अप, उनका वायरल लोड कब कीजिएगा? प्लीज आंसर। पेशेंट लॉस टू फॉलो अप था, वो ट्रेस कब, इतना एफर्ट लगाया, वो ट्रेस बैक हो गया है, तो उनका वायरल लोड कब कीजिएगा? ओके, इसका आंसर राइट ट्रैक में जा रहा है, सो आई एंड द पोल सो दैट वी कैन फिनिश फास्ट एंड यू कैन गो बैक टू योर जॉब्स। सो most of you have said correctly after 3 months of ART initiation and enhanced adherence counseling। तो आपका जो गाइडलाइंस अभी जो बोलता है, ठीक है, सो LFU री एंगेजमेंट में आपका देखा गया है कि मोर देन 1/3 PLHIV जो कि LFU हुए थे, फिर से LFU होने का चांसेस रहता है, ऑलमोस्ट 30% में फिर से LFU होने का चांसेस रहता है। तो दैट हैज टू बी टेकन, सो एनहांस अडेरेंस काउंसलिंग हैज टू बी डन। ठीक है, सो क्या हुआ, आप देखें कि दिसंबर 22 में 4000 मरीज थे जो कि वापस आए, रिटर्न टू ट्रीटमेंट, दैट इज LFU से वापस आए, लेकिन एक साल में ओनली 65% ही ट्रीटमेंट पे थे, ऑलमोस्ट 35% फिर से LFU हो गए थे। एंड इट इज कॉमन, यू विल सी इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ ART, ये कॉमन चीज है, ये प्रोग्राम का डेटा है, लेकिन ये आप अपने सेंटर में भी देखे होंगे। सो जो भी ट्रैक बैक पेशेंट है आफ्टर LFU, उनको एनहांस अडेरेंस काउंसलिंग देना जरूरी है। ठीक है, एंड आप ये वायरल लोड टेस्टिंग कर सकते हैं आफ्टर 3rd month ऑफ ESC। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ अडेरेंस लेवल एंड प्रीवियस वायरल लोड शीट। तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, यूजुअली आप किसी को इनिशिएट करते हैं तो 6 महीने पे वायरल लोड करते हैं, लेकिन अगर वो LFU था और वो वापस आया है तो आप 3 months पे ही वायरल लोड टेस्टिंग करेंगे आफ्टर गिविंग एनहांस अडेरेंस काउंसलिंग। ठीक है, इवन इफ द अडेरेंस इज बैड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज है, देन फिर से और एक बार एनहांस अडेरेंस काउंसलिंग करेंगे 3 months के लिए, एंड एड्रेस करेंगे सब बैरियर्स को जो कि आपका ट्रीटमेंट एडहेरेंस को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज व्हाई इट हैज बीन गिवन सेपरेटली। LFU ट्रैक बैक है तो 6 months वेट नहीं करेंगे, आप 3 months पे ही आप उसका वायरल लोड करेंगे। अगर एडहेरेंस 3 महीना पे ठीक नहीं है एंड वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज है, देन फिर से और एक राउंड ऑफ ESC करेंगे। ठीक है, so what are your key points and the summary points? कि HIV patient जो newly initiated on ART है, viral load first 6 months after initiating में होगा, then 12 months पे होगा, then yearly thereafter। जो second line and third line ART में है, viral load testing every 6 months होगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कब पहले वायरल लोड किया गया है क्या नहीं किया है, डज नॉट मैटर कितना दिन का ART लिया है, आप 32 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आप वायरल लोड करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि इसी पे आपका डिपेंड करेगा कि बच्चे को आप एक दवा देंगे या 2 दवा देंगे, बच्चा हाई रिस्क पे है या लो रिस्क ऑफ गेटिंग HIV। जो आपका पेशेंट ट्रैक बैक LFU केसेस है, उनको इमीडिएटली जैसे वो ट्रैक बैक हुआ है आपके फिर से कंटेक्ट में आए हैं, उसको एनहांस अडेरेंस काउंसलिंग तो कराएंगे और वायरल लोड को 3 months पे रिपीट करेंगे। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ अडेरेंस लेवल। अगर वो वायरल लोड सप्रेस्ड है, वेल एंड गुड, अगर वायरल लोड नहीं सप्रेस्ड है, फिर से और 3 months का अडेरेंस काउंसलिंग करके फिर से वायरल लोड करेंगे। जो पेशेंट का वायरल लोड अनसप्रेस्ड है, दे शुड, अब उसको फिर से ESC 3 months करेंगे ही,
अगर वायरल लोड मोर देन 95% अडेरेंस अब हो गया देन वायरल लोड करेंगे रिपीट। अगर लेस देन 95% है फिर एडिशनल 3 months ऑफ EAC2 करेंगे जिसमें डिफरेंट काउंसलर्स होगा एंड ये डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ART, SMO एंड MO होगा। एंड उसके बाद ये 3 महीना के बाद दैट मीन्स 6 महीना फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वायरल लोड मोर देन 1000 आप इसको इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वायरल लोड कराएंगे ही। अगर इस समय भी वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज है तब आप उसको सैसेप के लिए रिव्यू करेंगे। ड्यूरिंग द सैसेप रिव्यू प्लीज एंश्योर दैट इधर फिजिकली पेशेंट प्रेजेंट हो या ई सैसेप हो या टेली सैसेप हो सो दैट सैसेप भी पेशेंट के साथ इंटरैक्ट कर सैसेप फिर से इवेल्युएट करेगा। तो सैसेप कभी भी इवेल्युएट नहीं कर सकता अगर पेशेंट के साथ सैसेप का कोई कंटैक्ट ना हो। ठीक है, सो अब आप पूछ सकते अगर इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस सर चैट में जाए। So where is my chat? Good I'll afternoon, ma'am. just Yeah, Ma'am, I'm Dr. Soumita. I'm from Dehradun. yeah, Ma'am, I have a query. मैम जैसे किसी का हमने 6 months जिसकी भी जो नया पेशेंट है उसका हाँ, हमने 6 months पे वायरल लोड करवा दिया हाँ, और ये वायरल लोड अनसप्रेस्ड आया है, ठीक है, ठीक है। तो मैम इसको हम 3 months की EAC देकर इसका 3 months के बाद करवा देंगे अगर इसका EAC 1 ठीक रहा तो ठीक है। वायरल लोड रिपीट। तो तो मैम 9 12 months वाला करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? देखो 6 महीने पे सप्रेस नहीं हुआ तो आप नहीं मैम। EAC1 पे डाले तो EAC1 के एंड में आप देखो कि अडेरेंस अच्छा है कि नहीं है। लेस देन 95% है तो फिर से EAC2 करोगे, ठीक है। एंड उसके एंड में आपको ऐसे भी कराना वैसे भी कराना, तब तक 12 महीना हो गया, 6 से 9, 9 से 12। अगर EAC1 के बाद वायरल लोड ये अडेरेंस बहुत अच्छा था मोर देन 95% तब आप वायरल लोड डेफिनेटली कराओ। तो फिर मैम 12 months पे करवाएंगे अगर EAC 1 पे ठीक आ गया उसका वायरल लोड हाँ, तो क्या उसका 12 months पे करवाया जाएगा ये नया पेशेंट जो है? आप देखिए इफ यू फॉलो शेड्यूल बिकॉज इट्स अ गाइडलाइन, ठीक है, इट ओके इज मैम। बेस्ट टू फॉलो शेड्यूल्स। अगर आप शेड्यूल को रखेंगे तो आपका मैंने पेशेंट फॉलो अप इजी होगा वाया गाइडलाइंस में। मेक इट इजी फॉर द प्रोग्राम। इफ यू कीप ऑन चेंजिंग फॉर एवरीबडी यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेस। हम लोग का कोई नहीं नहीं प्रॉब्लम मैम, नहीं है। चेंजिंग नहीं मैम, जैसे ये आई नो, आई EAC अंडरस्टैंड 9 दैट, months पे हो जाएगी। आई 9 अंडरस्टैंड जैसे कि 12 मंथ जब 9 महीना में सप्रेस ही हो गया तो आप 12 महीने में क्यों कर रहे हैं? ओके मैम, नहीं करना है आप मतलब इसलिए नहीं ये कर रहे हैं, इसलिए नहीं करना है, आप इसलिए कर करना है। ताकि ओके पेशेंट को फॉलो अप में आपको इजी हो। ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। ओके मैम। तो आपको 12 महीने और पे की फिर तो नेक्स्ट 12 महीने पे फिर से होगा, फिर 12 महीने पे फिर से होगा, ठीक है। ठीक है तो आप जी, शेड्यूल पे रहेंगे पेशेंट के हिसाब से। फॉलो करेंगे मैम। और मैम जैसे आजकल जैसे अब हम MMD दे देते हैं और पेशेंट को हमने वायरल लोड करवाया और वो पीछे से खराब आ गया तो मैम क्या तीनों EAC सेशंस हम फोन पे दे सकते हैं? बिकॉज पेशेंट तो आता ही नहीं है बीच में। एक बार ही तो हम फोन पे उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो वायरल लोड बढ़ा हुआ है आप ठीक से दवाई खाइए। अब वो आता तो मैम 3 महीने के बाद है ना, बीच में तो आता नहीं। तो हाँ, मैम क्या ये कौन हम सेंटर तीनों से है ये कि आप लोग MMT दे रहे हैं? अभी तो दवा का जबरदस्त शॉर्टेज है। विच सेंटर आर यू फ्रॉम? मैम आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोनेशन, इट इज एन ART प्लस सेंटर मैम। So you all have adequate drugs to give for 3 months मैम अभी? ओनली TLD वी हैव, अदरवाइज तो नहीं है मैम। जैसे AL भी कम Then you have है, to ZL भी counsel कम the है। patient to come. You have to tell कि आपका वायरल लोड ये गड़बड़ है तो आपको एक बार आना पड़ेगा, ठीक है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, पेशेंट के पास 3 महीने का दवा है वो आना नहीं चाहता है, ठीक है। बट देन यू हैव टू कंटैक्ट द पेशेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एनकरेज हिम कि वो पेशेंट आए। पेशेंट हाँ जब नहीं आता है ना तो आपको ना जी उसका इंटरेक्शन ना कोई और दवा चल रहा है कि नहीं, पेशेंट को कोई OI है कि नहीं, आपको कुछ बैरियर्स पता नहीं चलता है। सो यू हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू कम बैक इवन इफ ही हैज मल्टी डोज 3 months का जी दवा, ठीक है। यू हैव टू जी एनकरेज। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो ma'am, question number 1 and 4 has been taken up. yeah, so हम in case after EAC2 viral load was unsuppressed and patient was referred to SASEP and still adherence not good even after proper counseling, then when to do viral load testing? Now that's a $1 million question, ठीक है। तो then you follow the schedule, ठीक है, बट यू विल ट्राई एंड डू इट एंड और लेट द सैसेप डिसाइड कि अगर पेशेंट ये दवा ले ही नहीं रहा है, ठीक है, लेट द सैसेप टेक अ डिसीजन कि वो चेंज करना चाहता है एट दिस पॉइंट कि
फिर से आपके पास भेज देना चाहता है, ठीक है। दिस डिसीजन वो आपका सैसप लेगा, ठीक है। सीइंग द पेशेंट, दैट इज वाई सैसप को आप उतना पावर दे रहे हैं कि वो पेशेंट के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करे, ठीक है। उसीलिए वो शेड्यूल आपको नहीं दिया, क्योंकि वो डिसीजन आपके ऊपर फिर रह नहीं जाता है। देन सैसप विल गाइड यू कि कब वायरल लोड टेस्ट निकलना है। एंड आईडीयूज आर रियली, वो तो इतना एलएफयूज होते हैं, तो आपको आईडीयू के साथ उनका जो टीआई है उनके साथ उनको लिंक अप करना होता है। अदरवाइज आईडीयूज आर मोस्ट डिफिकल्ट पेशेंट्स, इवन फॉर यू, फॉर अस, एवरीबॉडी। वो जबरदस्त एलएफयू होते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है लेट सैसप डिसाइड। देन क्वेश्चन नंबर 3, if during EAC patient is not present, can we rely on attendant? Try not to rely on attendant. Try and get back the patient, ठीक है। You telephonically documented, tell the patient to come, ask the and encourage the patient to come, ठीक है। That is what should be. And can we rely on attendant and provide EAC to attendant or extend you cannot give EAC to attendant. If the attendant is coming, you should refuse to give the patient को कुछ दिन का दवा देके tell the attendant कि आपको patient लाना जरूरी है, ठीक है। And extend EAC for next month. Don't do all these things. Try and bring back the patient, ठीक है। But if you are sure कि 3 महीना का adherence वो अच्छा लिया है, ठीक है, and टेलीफोनिकली आपने किया है, तब एक वायरल लोड करके देखिए, ठीक है। Now, but try and bring back the patient. Now that we dispense multi, ये तो हो गया। If after EAC repeat viral load is increased by showing significant decline, then let the SASP हम लोग बहुत बार वेट करते हैं SASP में। Many of the centers you might have seen कि we just waited. We asked certain questions, हम लोग को लगा कि नहीं, this is decreasing, this will decrease. So and जैसे कि if you are sending to BHU and all, we have a capacity to do a viral load immediately. Okay, not all the centers will have, but we do have. So if after EAC repeat viral load is increased but showing significant decline, then we can we at SASP recommend to continue same regimen and repeat viral load again at 3 months. That is a SASP decision you can take, but don't keep it at 3 months. Okay, if there's a decline, usually this first line regimens are so good कि by 6 weeks to 2 months everything should be suppressed. Okay. तो यू डू नॉट टेक अ डिसीजन, इंडिविजुअल पे आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन जो सैसप का डिसीजन है, बट ट्राई एंड गेट मोर कंटैक्ट विद द पेशेंट एंड लुक एट द पैटर्न ऑफ वायरल लोड इन दिस पेशेंट। हम 3 months नहीं वेट करके हम 1 month पे ही वेट कर सकते हैं। आई कैन रिपीट अ वायरल लोड एट 1 month। ये डिसीजन सैसप इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। हम लोग maybe I'm saying it so casually because हमारे पास viral load है. Many of the SASP do not have viral load facility, and I think viral load is the biggest problem in many of the centers. जैसे आगरा सिंह की patient 6 महीना बाद मेरे पास आ रहा है, and the patient we are getting patient जिसका viral load 6 months back का है, and now we are asking SASP to take a decision based on that. It's very difficult for SASP to do that. ठीक है, so individually SASP has to recommend. SASP का ये decision है. I would monitor the patient more frequently. Any more questions? Participants mic unmute कर सकते हैं, सभी को mic access दिया गया है। Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for taking out time to facilitate this important session. Okay, but we are your COE, कोई अगर question होगा ऐसे भी तो you can send a mail. But my request as a COE SASP member कि आप लोग जब भेजते हैं, you all write 2 lines, okay? Then you give everything. ठीक है, दिस इज योर पेशेंट। आपको बहुत क्लियरली लिखना चाहिए कि पेशेंट का स्टार्ट हुआ इस रेजिमेंट से। बहुत बार सब्स्टिट्यूशन, 1000 बार ये मैंने ART प्रोग्राम में सब्स्टिट्यूशन हुआ। आपको लिखना है कि दिस ड्रग वाज चेंज टू दिस ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट ड्यू टू स्विच, एंड राइट अ वायरल लोड बिसाइड्स इट। सो यू ऑल सेंड रेफरेंस। समटाइम्स इट इज सो बैड, आई डोंट वांट टू कंप्लेन, बट इट इज सो बैड कि हमको लगता है कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, हम बैठ बैठ के पूरा उसका ये खोल रहे हैं। बट दैट इज योर जॉब, यू हैव टू
गिव द सैसिप अ प्रॉपर हिस्ट्री, वो आपका पेशेंट है, ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आप सैसअप करा रहे, प्लीज ऑर्गेनाइज अ ई सैसअप और ई रेफरल, कॉल दोस पेशेंट एट दैट टाइम, एंड वो सेंटर पेशेंट हमारे पास आ पाए फाइन, अगर नहीं तो वी वांट टू इंटरेक्ट द पेशेंट थ्रू टेलीमेडिसिन और एनी ऑफ द जूम मीटिंग्स और व्हाट एवर इट इज। अगर आप चाहें, देयर वाज सम सर्टेन कंसर्न, हम एक्चुअली श्रोता से ही पूछे थे, कैन वी डू इट। आप अगर पेशेंट फेस नहीं दिखाना चाहे, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं दिखाना चाहिए। वी आर ऑल्सो डॉक्टर सिटिंग हियर मैनेजिंग HIV पेशेंट्स, सो डू दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैसेप से आपका इंटरेक्शन ठीक हो एंड पेशेंट का इंटरेक्शन सैसेप के साथ ठीक से हो, तभी ये प्रॉपरली हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उस पेशेंट के लिए बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much to all participants for patient listening. Ma'am, would you like to announce the 18th July session, Leishmaniasis? Yeah, I can see Yeah. Muzaffarpur ART centers and all those involved. So I do not know कि आप लोग को पता है कि नहीं कि visceral leishmaniasis एक काला आजार एक डिजीज है which is in the phase of elimination, ठीक है। Now इस elimination effort में ART प्रोग्राम का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि HIV और काला आजार जो को इन्फेक्टेड रहते हैं, स्पेशली जो एंडेमिक एरिया में रहते हैं ना, हु आर इन एंडेमिक एरिया, पूरा ईस्टर्न यूपी एंडेमिक एरिया में आता है, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, भदोही, वी आर ऑल एंडेमिक एरियाज, ओके। ऑल ऑफ झारखंड, ऑफ कोर्स बिहार तो बिहार है ही, बिहार एंडेमिक एरिया में माना जाता है। तो ये सब सेंटर्स के जो मेडिकल ऑफिसर्स है, 18th को हम लोग एक सेशन कर रहे हैं ऑन HIV-VL, एंड हम लोग चाहेंगे कि नॉट चाहेंगे, एक्चुअली आप लोग को हम लोग मैंडेटरी करना होगा ये सेशन अटेंड करना, बिकॉज आपके पास जो HIV पेशेंट्स आ रहे हैं एंडेमिक एरिया में, उनमें कालाजार रूल आउट करना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्री ये डिजीज को एलिमिनेट करे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, प्लीज ज्वाइन इन टू ऑल मेडिकल ऑफिसर्स जो कि ये एंडेमिक एरिया में है, बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी। The Ma'am, others we'll can also coordinate with for SACS. knowledge, but इन लोग का मैंडेटरी होगा। जी जी मैम, हम वो SACS के साथ coordinate कर लेंगे. Yeah, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now.